My dear friends, we are continuing about Vivekanand and his great journey to the West. So, again, I am reading yesterday's text rapidly. This journey was indeed an astonishing adventure. समझे जरा फोकस करो आप. The young Swami went into it at random with his eyes shut. बिना सोचे समझे चल दो देखा जाएगा. He had heard vaguely of a parliament of religions to be opened someday somewhere. इस बात को शो कर रहा है कि कुछ पता नहीं है बंदे को. Someday somewhere in America किसी ने कहा जी वहां पे होगा, चलो चल दो, कब होगा क्या होगा कुछ नहीं पता किसी को. And he had decided to go to it, although neither he nor his disciples nor his Indian friends, students, pandits, ministers or maharajas had taken any trouble to find out about it. He knew nothing, neither the exact date nor the conditions of admission. He did not take a single credential with him. He went straight ahead with complete assurance, as if it was enough for him to present himself at the right time, God's time. And although the Maharaja of Khetri had taken his ticket on the boat for him, and despite his protests, had provided him with a beautiful robe that was to fascinate American idlers no less than this eloquence, neither he nor anybody else had considered the climate, conditions, and customs. Even he froze on the boat when he arrived in Canada in his costume of Indian popman ceremony. तो महाराज ने जो उसको कपड़े दिए तो उसके मना कर रहे थे, उन्हें नहीं क्या करना है. महाराज ने कहा नहीं बाहर जा रहे हो, थोड़ा सा तो अच्छे लोगो, कम से कम ऐसे क्या. बिल्कुल. He left Bombay. हाँ, he left Bombay, now Mumbai on 31 May 1893. नोट कर लेना है सारी डेट्स वगैरह. And went by way of Ceylon, Penang, Singapore, Hong Kong, and then visited Canton and Nagasaki. Thence he went by land to Yokohama, seeking Osaka, Kyoto, and Tokyo. Everywhere, both in China and Japan, his attention was attracted by all that might confirm his hypothesis, conviction, alike of the religious influence of ancient India over the empire of the Far East and of the spiritual unity of Asia. At the same time, the thought of the ills from which his country was suffering, ills का मतलब बुराइयां, कमियां, परेशानियां, never left him, and the sight of the progress achieved by Japan reopened the wound. यहां तक हमने कल पढ़ लिया था. अब आ रहे हैं हम आगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा मैं. अब आपको करना क्या है, जो भी लोग नए हैं, योगेश पर्टिकुलरली, कोई भी मीनिंग आए, कोई भी नोट्स आए, याद लिखने की आदत डालो, थोड़ी सी लिखा करो, नोट्स बनाओ. पूछना है, कोई मीनिंग लिखना है, अलर्ट हो जाओ कॉपी पेन लेकर. सर वो डेट ऑफ डिपार्चर क्या थी? क्या चीज? डेट ऑफ डिपार्चर थी 31 मई. ईयर 31 मई 1893. और सितंबर में ये प्रोग्राम था. बता देता हूं मैं आपको बीच में कैसे क्या रहा, आप सुनिए ध्यान से आप. He went from Yokohama to Vancouver. Vancouver is situated in Canada. Thence THENCE. Thence का मतलब वहां से. लिख लो फटाफट से मीनिंग, अलर्ट रहो. Thence by train he found himself towards the middle of July in a state of bewilderment. लिखो, पहले स्पेलिंग लिखो फिर बोलूंगा. bewilderment
bewilderment, चेक करो स्पेलिंग, नहीं हो तो लिख लेना, BEWILDERMENT, bewilderment at Chicago. bewilderment का मतलब होता है उलझन, भ्रामक स्थिति में, कंफ्यूजन की अवस्था में। दोबारा पढ़ूंगा मैं इसको, अभी लिख लो आप मीनिंग। The whole way was strewn with his feathers. स्ट्यून का मतलब होता है एक प्रकार से दिखावा, मतलब एक प्रकार से प्रभावित होना, ठीक है ना। और फेदर्स का मतलब उसके गर्व से, जिस तरीके से वो चल रहे थे ना, तो पूरे के पूरे रास्ते में जो भी लोग मिलते थे उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे, कौन है, क्या है, अजीब सी वेशभूषा में। फॉर ही वॉज अ मार्क्ड प्रे, PREY, प्रे, PREY, प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। फॉर द फ्लीसर, फ्लीसर लिखो मीनिंग, FLEECER, फ्लीसर, फ्लीसर का मतलब चीटर, धोखेबाज, ठगने वाले। He could be seen from afar. He could be seen, पैसिव वॉइस है मॉडल का। He could be seen from afar. At first, like a great child, he wandered, wandered, लिखो, पकड़ो साउंड को, wandered, gazing, gazing, wandered की स्पेलिंग WANDERED, wandered, wander का मतलब घूमना, भटकना, इधर उधर घूमना। He wandered gazing, 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 नॉन फाइनाइट वर्ब है, देखता हुआ, ताकता हुआ। माउथ अगैप, माउथ अगैप का मतलब खुले मुंह से, मुंह खुला का खुला रहेगा जब वहां पर उसने उन चीजों को देखा, अरे यार यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, हमारे वहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। माउथ एक अगैप का मतलब होता है आश्चर्य से, जब ना आश्चर्य से मुंह खुला रह जाना। माउथ अगैप इन द वर्ल्ड्स फेयर, फेयर FAIR, फेयर का मतलब मेला, पूरे संसार का जो मेला लगा हुआ था वहां उसने देखा कि है क्या क्या है यहाँ पर, तो क्या क्या हो गया। द यूनिवर्सल एक्सपोजिशन ऑफ शिकागो, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, एक्सपोजिशन, EXPOSITION, एक्सपोजिशन ऑफ शिकागो। एवरीथिंग वॉज न्यू टू हिम, बहुत सिंपल सा रहा है, एवरीथिंग वॉज न्यू टू हिम, एंड बोथ सरप्राइज्ड एंड स्टूपिफाइड हिम, सरप्राइज्ड, स्टूपिफाइड, stupefied, STUPEFIED, stupefied him। स्टूपिफाइड का मतलब एक तरीके से जैसे मूर्ख बन जाना, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करना, लाइक दैट, उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। आश्चर्य भी हो रहा है, स्टूपिफाइड, भौचक्का रह रहा है वो देख देख करके कि है ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। समझ में आ रहा है। He had never imagined the power, the riches, 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 riches का मतलब समृद्धि, द इन्वेंटिव जीनियस, इन्वेंटिव, इन्वेंटिव लिख लोगे स्पेलिंग आप, फोकस है तो, इन्वेंटिव, INVENTIVE, इन्वेंटिव जीनियस ऑफ दिस वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्वेंटिव जीनियस का मतलब वो बड़े बड़े जीनियस जो आविष्कार करने वाले जो लोग हैं, क्या क्या चीजें वहां पर उन्होंने बना ली। बीइंग, बीइंग ऑफ अ स्ट्रॉन्गर वाइटलिटी, वाइटलिटी, जीवन शक्ति, वाइटलिटी, vitality, VITALITY, being of a stronger vitality and more sensitive to the appeal of force, appeal, APPEAL, appeal of force. Vivekananda was at his ease in it, at least at first. He succumbed, because succumbed
SUCCUMBED, succumbed to its exciting इंटॉक्सिकेशन। एक्साइटिंग के तो लिख ली होगी आपने, EXCITING, एक्साइटिंग इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन INTOXICATION, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा। सकम्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, हार मान लेना। And his first feeling was of juvenile acceptance. Juvenile, 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 juvenile का मतलब किशोर, किशोर वय की। His admiration knew no bounds. admiration लिख लोगे, प्रशंसा। And his first feeling was of juvenile acceptance. His admiration knew no bounds. For 12 days, he filled his eager eyes with this new world. A few days after his arrival in Chicago, he लिख लो आप तो, he thought to go to Information Bureau of the Exposition. क्लियर हुआ भाई? वहां पहुंच तो गया, जाके अपना नाम वाम भी लिखवाएगा, कैसे एंट्री लेनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी, ये भी तो करेगा कि नहीं करेगा? He cabled, CABLED, ही केबल्ड का मतलब तार भेजा उसने। उस समय तार चलते थे, जैसे आज अपने फोन वगैरह पे बात हो जाती है। अब उस समय कोई मोबाइल तो थे नहीं कि मैसेज भेज देगा, फोन कर लेगा। टेलीग्राम चलते थे उस समय तो, जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए, मतलब कोई मैसेज भेजने के लिए। ही केबल्ड टू हिज फ्रेंड्स इन मैड्रास फॉर हेल्प। आप फंस जाओगे तो किसी को तो बोलोगे ना हेल्प करने के लिए, क्या करे, वहां पे तो किसी को जानता भी नहीं था वो। सर ये मेड्रोस कौन सी जगह है? मैड्रास नहीं समझते? मद्रास, चेन्नई। चेन्नई। तो सर Full name मद्रास of है ना, Chennai. तो पहले दूसरा नाम था ना। He cabled to his friends in Madras for help and applied to an official religious society that it might make him a grant. But official societies did not forgive independence. ये बात बहुत जोरदार। आदमी अपनी मर्जी से कैसे चला गया, पहले क्यों नहीं पूछ के गया हमसे? समझ गए आप? होता है ना, अब परमिशन मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं मांगी परमिशन? नहीं मिलेगी परमिशन अब। The chief of the society sent this reply. क्या रिप्लाई भेजा उसने? जो सोसाइटी का जो हेड था इंडिया के अंदर, उसने क्या रिप्लाई भेजा? लेट द डेविल डाई ऑफ कोल्ड। मरने दो उस बदमाश को वहीं पे, शैतान को, कुछ नहीं करेंगे हम उसके लिए, मरने दो वहीं। समझ में आ गई बात आपको? देखो समझने की बात क्या है, मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, फिर पढ़ूंगा मैं एक बार। सर मन के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? हैं? किसको बोला था ये? किसको बोला था क्या? जिन्होंने परमिशन मांगी थी, वहां से परमिशन के लिए गया तो उन्होंने कहा रहने दो, कुछ नहीं करना आपने को इसके लिए, मरने दो उसको। समझिए आप इस बात को। वहां पर विवेकानंद जी गए हैं, अब उनको वहां पर अगर उसमें पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेटर लेकर के गए हों कि भाई हमारा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और हम इनको भेज रहे हैं अपनी तरफ से उसमें भाग लेने के लिए। लेकिन विवेकानंद जी के पास में ऐसा कोई भी क्रीडेंशियल, कोई भी पेपर नहीं था। समझ में आ गई बात आपको? वहां चले गए, पहुंच गए, वहां पे लोग उनको अजीब अजीब नजरों से देखने लगे, घूमते फिरते रहे वो।
ठीक है ना। हर चीज उनके लिए नई थी वहां पर, हर चीज उनको आश्चर्यचकित कर रही थी, हर चीज उनको भौचक्का कर रही थी। लेकिन उनके अंदर एक बात थी कि उनकी जीवन शक्ति बड़ी जबरदस्त थी। देख लेंगे, कर लेंगे, करना तो यही है, पार्ट तो लेना ही है। देखते हैं, 10-12 दिन तो वैसे ही घूमते रहे वहां पर। क्लियर हो गया आपको। लेकिन उनके अंदर एक नशा चढ़ा हुआ था। किसका? एक बहुत जबरदस्त कि मुझे करना है ये, और उस नशे के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए कि नहीं, जाना नहीं है यहाँ से। यही तो चीज होती है आपको जीत के लिए, तो मैं बता रहा हूं आपको और करवा क्या रहा हूं। अगर जीत का नशा चढ़ा हुआ है कि जीतना है, करना है, फिर आपको कोई चीज नहीं रोक सकती है। फिर 10-12 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि भैया चलो अब एक काम करते हैं, यहां तो अपन आ ही गए हैं, तो मालूम तो करें जरा कब है प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम है, कैसे अपनी एंट्री होगी, कैसे अपन जाएंगे, कैसे अपन नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां पर जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो था वहां गए वो। इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तो समझ ही गए आप, जहाँ सूचनाएं मिलती हैं, सब कुछ बात होती है कि भाई क्या प्रोसीजर है, कैसे मेरा एडमिशन होगा, क्या होगा यहाँ पर, मैं कैसे आऊंगा, कैसे पार्ट लूंगा मैं इसमें। तो जब वो वहां पर गए इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, तो उनको पता चला कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो होगी ना, वो कब होगी? सितंबर में होगी। डेट निश्चित नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले नहीं होगी। उन्होंने कहा जी मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन तो कर ले, कोई रेफरेंस है, किस सोसाइटी से आए हो, कहां से आए हो? उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। बोले कि नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, पैसे भी नहीं थे उनके पास, पर्स उनका खाली हो चुका था लगभग लगभग। तो मेड्रोस के अंदर उनका कोई फ्रेंड रहता था, उसको उन्होंने टेलीग्राम किया कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम में हूं, कुछ हेल्प करो। वहां तो वो किसी को जानते नहीं थे। तो उनके फ्रेंड ने उनको कहा होगा कि भाई ऐसा कर, हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी, वहां पर तुम इस चीज के लिए अप्लाई कर दो कि तुम अमेरिका गए हुए हो और वहां की रिलीजन पार्लियामेंट में तुमको हिस्सा लेना है, तो वो ये तुमको वहां से, यहाँ से लेटर बना के दे देंगे, तो तुम उस लेटर को वहां पर रेफर कर देना, उससे तुम्हारा हो जाएगा एंट्री। अब उन्होंने जब यहाँ पर उस सोसाइटी के लिए जब अप्लाई किया सोसाइटी में, तो सोसाइटी वालों ने देखा है ऐसे कैसे चला गया, अपनी मर्जी से चला गया, ऐसे कैसे चला गया, पहले हमसे पूछ के जाता, सब कुछ करता। नहीं देंगे हम इसको परमिशन, छोड़ो इसको, कुछ परमिशन नहीं देनी है उसको। तो लेट द डेविल डाई ऑफ कोल्ड, मरने दो उसको, जैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। समझ में आ रही बात आपको? जबकि करना ये चाहिए था कि बंदा गया है तो भाई कोई बात नहीं, ग्रांट कर दो, एक लेटर लिख के भेज दो, हो जाएगी उसकी एंट्री। बिना पूछे कैसे चला गया हमसे, पहले क्यों नहीं बताया? बात यहाँ पर ये आ गई। क्लियर हो गई बात आपको? अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको, मीनिंग्स में आपको बता ही चुका हूँ। He went from योकोहामा टू वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा के अंदर एक जगह का नाम है। Thence by train he found himself towards the middle of July in a state of bewilderment at Chicago. मीनिंग लिखे हुए देखते रहिए आप। The whole day was strewn with his feathers, for he was a marked prey for the fleecer. ठग, चीटर्स हर जगह मिलते हैं। पूरे रास्ते वो चलता रहा, उसकी अलग से अजीब सी ड्रेस थी, लोग उसको देखते रहे कि वो जो ठग होते हैं उनके चक्कर में, कि कहीं हमारे चक्कर में फंस जाए तो मजा आ जाए, वो घूमते रहे वहां पर। ही कुड बी सीन फ्रॉम अफार, दूर से दिखाई दे सकते थे वो, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस। एट फर्स्ट लाइक अ ग्रेट चाइल्ड he wandered, gazing mouth agape in the World's Fair, the universal exposition of Chicago. उसी के लिए बात आ रही है जो धर्म सम्मेलन हो रहा था। Everything was new to him, and both surprised and stupefied him. He had never imagined the power, the riches, the inventive genius of this Western world, being of a stronger vitality and more sensitive to the appeal of force. Vivekananda was at his ease in it, at least at first. शुरू शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रहे वो।
he succumbed to its exciting intoxication, यानी कि उनकी उत्तेजित करने वाला जो नशा था ना कुछ करने का, उसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए कि हाँ अब मैं यही करूंगा बस। एंड इट फर्स्ट फीलिंग वाज ऑफ जुवेनाइल एक्सेप्टेंस, एक जो किशोर वय का व्यक्ति होता है ना, जो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है चीज को कि यही करना है मेरे को, लाइक दैट, इस तरह की फीलिंग्स थी। हिज एडमिरेशन न्यू नो बाउंड्स, नो न्यू बाउंड्स एक फ्रेज होता है, सीमा नहीं जानना, बाउंड्स का मतलब सीमाएं, यानी कि उसकी जो प्रशंसा थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। For 12 days he filled his eager eyes with this new world. A few days after his arrival in Chicago, he thought to go to the information bureau of the exposition, but after reaching there, he was shocked. He discovered that the parliament did not open until after the first week of September, and that it was too late for the registration of delegates. Moreover, that no registration would be accepted without official references. दो बातें हो गई यहाँ पर, एक तो डेट निकल चुकी है रजिस्ट्रेशन की, और एक बिना रेफरेंस के कोई उसका एडमिशन नहीं होगा, एंट्री नहीं हो सकती। He had none, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई पेपर नहीं था, कोई क्रेडेंशियल नहीं था। He was unknown, without credentials from any recognized group, and his purse was nearly empty. It would not allow him to wait until the opening of the parliament. पर्स में इतने पैसे नहीं देते तब तक वो रह नहीं सकता वो, पर करना है। अब यहाँ पर यही बात आ गई ना, बस पेपर्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन की डेट जा चुकी है। सुनो आप, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पेपर उसके पास नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, जेब में पैसा नहीं, पर जोश बराबर बना हुआ है, करना है। आगे बात समझ में? फिर क्या किया उसने? He was overwhelmed. He cabled to his friends in Madras for help and applied to an official religious society that it might make him a grant. कि भैया ग्रांट कर दो, अनुमति दे दो, परमिशन दे दो, एक लेटर भेज दो। But official societies did not forgive independence. इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार की जो सोसाइटीज होती हैं वो स्वतंत्रता को माफ नहीं करती हैं, वो नहीं चाहती कोई भी आदमी आजादी से अपनी स्वतंत्रता से अपने लिए कोई काम करे, पहले हमसे बात करो, पूछो, हमारी परमिशन लो, फिर करो। सर उस टाइम तो ब्रिटिशर्स थे ना इंडिया में। अरे ब्रिटिशर्स भी होंगे तो छोटी सोसाइटी चल रही है, आज भी नहीं चल रही, सरकार थोड़ी चलाती है सब सोसाइटीज को। आज भी जितने एनजीओ चल रहे हैं तो सरकार थोड़ी चला रही है। समझ गए ना मेरी बात? द चीफ ऑफ द सोसाइटी सेंट दिस रिप्लाई, जब विवेकानंद ने अप्लाई किया कि भाई मुझे आप एक रेफरेंस दे दो, एक लेटर लिख के भेज दो, तो जो चीफ था ना सोसाइटी का, उसने क्या कहा? नहीं देंगे, मरने दो इसको ऐसे ही, बिना पूछे क्यों गया हमसे। लेट द डेविल डाई ऑफ कोल्ड। सर कोल्ड है ना लास्ट में? हाँ, मतलब एक समझ लीजिए कि मरने दो उसको ठंड में वहीं पे, बिना उसके मरने दो, हम नहीं कुछ करेंगे इसके लिए। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन अब देखिए आगे की बात समझिए आप जरा। द डेविल किसके लिए आ रहा? विवेकानंद के लिए। यही कहा था ना सोसाइटी के अध्यक्ष ने उसको। लेकिन द डेविल नाइदर डाइड नोर गेव अप, ना तो वो मरे और ना ही उन्होंने हार मानी। ये होती है जीतने की बात। आगे बात समझ में? हाँ, नॉर्मल सा इंसान होता तो पहले ही वापस आ जाता। अरे यार सितंबर में, अभी तो जुलाई चल रहा है, चलो वापस, 3 महीने कौन रुकेगा यहाँ पे। अरे यार पैसे भी खत्म हो गए, चलो वापस। अरे यार अब तो कोई अपने पास में लेटर भी नहीं है एडमिशन के लिए, एंट्री के लिए, चलो वापस। लेकिन सब कुछ हुआ इसके साथ में, पैसे खत्म, कोई रेफरेंस नहीं,
है, लेकिन फिर भी नहीं। He threw himself upon fate. Fate, F-A-T-E, fate का मतलब भाग्य। He threw himself upon fate, and instead of holding in inaction the few dollars remaining to him, बचा क्या उसके पास? कुछ नहीं, कुछ डॉलर्स बच गए, बस उसको पता था काम चलेगा ही नहीं। क्या करें अब? क्या करोगे आप? बचा के रखोगे उनको? बचा के रखोगे ना? पैसे खत्म हो रहे हैं यार, लास्ट के पैसे बचे, बचा के रख लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही स्पेंट them अराउंड, डॉलर्स के लिए जो बचे थे उसके पास। ही स्पेंट them इन विजिटिंग बोस्टन। अमेरिका में है बोस्टन, कोई बात नहीं, जो भी है, चलो बोस्टन चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। क्लियर हो गई बात आपको? सर कहाँ घोस्टन का? बोस्टन, घोस्टन नहीं, बोस्टन। अच्छा बोस्टन, हाँ हाँ है जगह। हाँ, बोस्टन एक जगह का नाम है अमेरिका के अंदर। सो ही स्पेंट हिज मनी, द रिमेनिंग मनी, इन विजिटिंग बोस्टन। है ना, कई बार छोड़ दो, अपने हाथ में कुछ नहीं है तो भाग्य पे छोड़ दो, अब जो होगा हो जाएगा। लेकिन करना है, अब देखेंगे जैसे भी जो भी होगा। फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, F-A-T-E। फेट हेल्प्ड हिम, आ गया समझ में? और भाग्य ने उसकी मदद की। अब देखिए एक बात यहाँ पर, एक सेइंग आ रही है, फेट ऑलवेज हेल्प्स दोज हु नो हाउ टू हेल्प देमसेल्व्स। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अपन प्रयास करते रहिए, रास्ता मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। सर ये तो स्वामी विवेकानंद की लाइन्स है ना? वही चल रहा है, और क्या चल रहा है? कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा है? दीदी, है? सिमरन दीदी। समझ में आ गया आपको? विवेकानंद नेवर पास्ड एनीवेयर अननोटिस्ड। समझ में आ गई बात आपको? ये लाइन समझ में आ गई? कौन बताएगा इसका मतलब? विवेकानंद नेवर पास्ड एनीवेयर अननोटिस्ड। सर, बोलो। sir, Swami Vivekananda, when he passed from any place, either everyone noticed him or he noticed everything over there. सही है, मतलब कहीं से भी वो गुजरे ना, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहीं से भी गुजरे, लोगों ने उनके ऊपर ध्यान दिया। कौन है यार? बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस। बता दूं मैं रीजन भी आपको। बट फैसिनेटेड इवन वाइल ही वॉज अननोन। आकर्षण हुआ लोगों को देख करके, अननोन था लेकिन फिर भी उनको देख करके लोगों को एक उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनके व्यक्तित्व से उनसे प्रभावित होते थे देखते ही, यार बंदा है कोई। इन द बोस्टन ट्रेन, सुनिए ध्यान से, इन द बोस्टन ट्रेन हिज अपीयरेंस एंड कन्वर्सेशन struck a fellow traveler, a rich Massachusetts lady। मैसाचुसेट्स का मतलब अमेरिका के अंदर एक जगह का नाम है, मैसाचुसेट्स। who questioned him and then interested herself in him, invited him to her house and introduced him to the Hellenist J.H. Wright, a professor at Harvard। समझ में आ गया? ट्रेन में जा रहे हैं, बोस्टन की ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो एक तो उनका लुक ऐसा है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, फिर उनकी बातचीत ऐसी। तो उसी ट्रेन के अंदर एक लेडी जा रही थी, बड़ी धनी महिला थी, ठीक है ना, वो भी उसमें जा रही थी साथ में, मतलब साथ में तो नहीं पर उसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी।
उन्होंने उससे पूछा कि भाई कौन है, कहां से है, क्या नहीं है। और जब when स्वामी विवेकानंद told that lady about him, so that lady became interested in him. उनको भी आने लगा कि हाँ यार बंदा तो ठीक है, अच्छा है, उनकी बात में उनको इंटरेस्ट आने लगा। एंड उसने क्या किया, शी इनवाइटेड हिम टू हर हाउस, कि चलो मेरे घर चलो, ये लो आ गया रास्ता। रास्ता ऐसे बनता है, घबराओ मत। एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम, एंड दैट लेडी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द हेलेनिस्ट J.H. Wright, नाम है, अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उस लेडी ने उन प्रोफेसर से उनकी मुलाकात करवाई। क्लियर हो गया। द लेटर, LATTER, लेटर का मतलब बाद वाला। बाद वाला कौन है यहाँ पर, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। द लेटर was at once struck by the genius of this young Hindu and put himself entirely at his disposal. और उस प्रोफेसर ने बड़ा प्रभावित हुआ विवेकानंद से। उसने कहा कोई टेंशन मत करो, अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी, आ जाओ, तुम जैसे चाहते हो मैं करूं। हो गया काम, हो गया। हमें छोड़ There when the professor took all the यस, इसे सुनिए आप। So where we left, that the professor of Harvard University, है ना, yes sir, put himself entirely at his disposal. He insisted, he means the professor of Harvard University, insisted that Vivekanand should represent Hinduism at the Parliament of Religions. उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं देखता हूं, मैं करवाता हूं व्यवस्था, अभी लेना ही है तुमको पार्ट तो। एंड रोट, कहते हैं ना अप्रोच, एंड रोट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी, यानी कि उस जो एग्जीबिशन, उसका पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट था ना कमिटी का, उन्होंने डायरेक्ट उसको लेटर लिखा। ही ऑफर्ड द पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब बिना पैसों वाला, कोई पैसा नहीं, पेनीलेस, मनीलेस, पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री। तीर्थयात्री सर ये को अनेक पेनी वो प्रकार एक से, करेंसी होगी ना? पेनी वहां की करेंसी होती है अमेरिका की, पेनी, सेंट, डॉलर। तो ही ऑफर्ड द पेनीलेस पिलग्रिम अ रेलवे टिकट टू शिकागो। समझ में आ गया कि चल भाई शिकागो, शिकागो का टिकट मैं करवा देता हूं तेरा, चल पहुंच। एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर फंडिंग लॉजिंग्स। क्लियर हो गया। यहां से लेटर नहीं मिला इंडिया से, लेकिन वहां के एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसको सपोर्ट किया। उस कमिटी के प्रेसिडेंट को लिखा जो पार्लियामेंट को अरेंज कर रही थी, उसको लेटर लिखा और शिकागो के लिए उसका टिकट दिलवाया, और फिर कुछ लेटर्स लिख के दिए रिकमेंडेशन के। कहा किसके लिए, उस कमिटी के लिए, जिसमें उसने कहा कि इसको फंडिंग वगैरह ये वो सब अलाउ करवाओ। इन शॉर्ट ऑल हिज डिफिकल्टीज वर रिमूव्ड। समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। सर स्वामी विवेकानंद